اور یہاں پر آپ کو خبر دے رہے ہیں پشاور سے، جہاں پر دھماکے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ورسک روڈ پر دھماکے کی اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہے۔ دھماکے کے مقام پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ یہ دھماکہ کس نوعیت کا ہے، اس حوالے سے ناظرین کو آگاہ کریں گے جیسے جیسے ڈیٹیلز ہم تک سامنے آئیں گی۔ یہاں پر تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ورسک کا یہ علاقہ ہے، پشاور روڈ پر دھماکہ ہوا ہے۔ دھماکے کے مقام پر پولیس اور ریسکیو ٹیمیں روانہ ہو گئی ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس علاقے کو کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ ورسک روڈ پر دھماکہ ہوا ہے، یہ اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہے۔ دھماکے کی وجوہات کیا ہیں اور اس حوالے سے مزید جو ہے وہ ڈیٹیلز بھی ہم جو ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق پشاور سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں جہاں پر دھماکہ ہوا ہے، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ دھماکے کے مقام پر پولیس اور ریسکیو ٹیموں کو روانہ کر دی گیا ہے۔ ورسک روڈ ہے پشاور کا، اور جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے، دھماکے کی اطلاعات ہم تک موصول ہو رہی ہے، اور اس دھماکے سے متعلق جیسے جیسے تفصیلات ہم تک پہنچیں گی ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن ابتدائی اطلاعات کے مطابق ورسک روڈ ہے، دھماکہ ایف سی کی گاڑی کے قریب ہوا ہے، پولیس کا یہ بتانا ہے۔ پشاور سے جانیں گے عبد الرحمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عبد الرحمان آگاہ کیجیے گا، ابتدائی تحقیقات کے مطابق یا اطلاعات کے مطابق اس دھماکے سے متعلق مزید کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ورسک روڈ پر کبابیان نامی جگہ پہ جو ہے وہ ایف سی قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو ہے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ شہادتوں کا بھی خدشہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک جو پولیس حکام ہے انہوں نے کنفرم نہیں کیا ہے شہادتوں کے حوالے سے، لیکن شاہدین کے مطابق یہ دھماکہ ہوا ہے وہاں ورسک روڈ پہ، اور اس میں جو نکلا تھا وہ ایف سی کی گاڑی تھی، تو امدادی جو اداروں کی گاڑیاں ہیں وہ موقع پر پہنچ رہی ہیں۔ بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی زخمیوں کو قریبی جو نجی اسپتال ہے وہاں پر بھی منتقل کر رہے ہیں۔ جی اچھا، آس پاس کتنے قریبی اسپتال ہیں عبد الرحمان؟ ایک تو ہمیں یہ بھی آگاہ کر دیں اس دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے کچھ اگر اب تک ڈیٹیل سامنے آ پا رہی ہیں تو اس حوالے سے بھی ناظرین کو آگاہ کر دیں عبد الرحمان۔ جی ابھی تک پولیس حکام جو ہے اس حوالے سے کچھ نہیں بتا رہے کہ یہ دھماکے کی نوعیت کیا ہے، لیکن اس کا نشانہ جو ہے وہ ایف سی کی گاڑی تھی، اور جو قریبی ایک نجی اسپتال ہے جو وہاں کو کہا جا رہا ہے کہ منتقل کیا جا رہا ہے، اور امدادی اداروں کے آنے سے پہلے پہلے جو وہاں پر لوگ تھے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے بڑی تعداد میں امدادی اداروں کی گاڑیاں بھی وہاں جہاں حادثے کی طرف پہنچ رہی ہیں۔ ورسک روڈ جو ہے انتہائی بازی میں بھی یہاں پر ایف سی اور سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ تھانوں پہ بھی حملے ہوئے تھے۔ تو ورسک روڈ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ آگے جا کے مومن ایجنسی اور خصوصاً جو ورسک ڈیم کی طرف یہ جاتا ہے تو یہ انتہائی حساس سڑک ہے، اور یہاں پہلے بھی جو ہے دہشت گرد اپنے مضمون کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ جی پہلے بھی دہشت گرد مضموم کاروائیاں کرتے ہیں۔ عبد الرحمان تھوڑا سا ہمیں سیکیورٹی چیک پوسٹ کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیں، بالخصوص اس علاقے کے حوالے سے لوکیلٹی ہم جاننا چاہ رہے ہیں۔ یہ سیولینز کا علاقہ ہے، چونکہ آج ویک ڈے بھی ہے، تو کیا آس پاس کوئی اسکولز وغیرہ اس طرح کی بھی لوکیلٹی ہے؟ عمومی طور پر رش لوگوں کا آنا جانا اس علاقے میں کتنا ہوتا ہے صبح کے ٹائم؟ ورسک روڈ پشاور میں کے حوالے سے نجی اسکولوں کے حوالے سے کافی شور ہوتا ہے، اور یہاں پر درجنوں نجی اسکول ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ اسکول کھل چکے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اسکول کی چھٹی سے پہلے ورسک روڈ پہ یہ مضمون کارروائی کی گئی ہے، اور جو ایف سی کہا جا رہا ہے کہ ایف سی کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا عبد الرحمان، تھوڑا سا ہمیں یہ اگر آپ بتا سکیں کہ کچھ عینی شاہدین بتا پا رہے ہیں کہ اس دھماکے کی نوعیت، کتنا دور دور تک یہ دھماکہ سنا گیا، آس پاس کی عمارتوں کے حوالے سے کچھ اگر بتایا جا سکتا ہے تاکہ اس نوعیت کا تعین کیا جا سکے؟ شاہدین ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے زوردار آواز آئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر دھول وغیرہ مٹی اڑ رہی تھی، اور پھر جب دیکھا گیا تو ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور وہاں پر بڑی تعداد میں جو ارد گرد لوگ تھے وہ لگ کے، اور انہوں نے آج خود امدادی سرگرمیاں شروع کی، اور ایک نجی اسپتال ہے قریب، اور وہاں پر زخمیوں کو جو ہے ابتدائی طور پر منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ریسکیو 112 اور دیگر امدادی اداروں کی گاڑی
गाड़ियां भी जाए हादसा पर पहुंच गई हैं। जी बिल्कुल, जाए हादसा पर इस वक्त रेस्क्यू की और पुलिस की गाड़ियां पहुंच गई हैं। अब्दुल रहमान, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमें उस लोकेलिटी के हवाले से भी बता दें कि कितने रेडियस तक, आप जैसे बता रहे हैं कि निजी स्कूल्स बहुत सारे वहाँ पर जो वर्सिक का इलाका है वहाँ मौजूद हैं, कितने रेडियस तक स्कूल्स मौजूद हैं, अस्पताल कितना दूर है, थोड़ा सा सवाल साझा कर दें अब्दुल रहमान। जी बिल्कुल, तकरीबन ये जो है कैंट से मुल्हिका इलाका है, पेशावर छावनी से तकरीबन कोई 2 से 2.5 किलोमीटर दूर इलाका है ये, कबापियान वर्सक रोड। और यहाँ पर जो है ज्यादातर जो दर्जनों की तादाद में यहाँ पर निजी स्कूल है, और इसके अलावा जो है और शहरी आबादी भी है, और बड़ी तादाद में यहाँ पर मार्केटें भी हैं। तो वो जो ये इलाका है ये पेशावर रिंग रोड और वर्सक रोड के उस पे है, संगम पे वाक़या है। तो दहशतगर्दों ने यहाँ पर निशाना बनाया और ये काफी हसास तरीन सड़क है, और इससे पहले भी यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो अपनी मजमूम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। और उससे थोड़ी से ही आगे जो है फिर छावनी की हदूद शुरू हो जाती है, जहाँ पर मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन है और दीगर वो APS भी इसी वर्सक रोड पर वाक़या है। जी, अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेलिटी के हवाले से अब्दुल रहमान आप डिटेल्स हम तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही रहिएगा, हम देख सकते हैं आसपास कुछ रेडी बान वगैरह, बाजार भी, एक मसरूफ शाहरा, मसरूफ इलाका हमें नजर आ रहा है। समा की एक्सक्लूसिव विजुअल्स नाज़रीन को बता दें, इस वक्त जो आप देख सकते हैं विजुअल्स, शायद मुमकिन तौर पर ये गाड़ी वो हो सकती है FC की, जिसे निशाना बनाने की कोशिश की गई, निशाना बनाया गया दहशतगर्दों की जानिब से। बहरहाल इस हवाले से जो ठोस इत्तलात हैं वो समा के नाज़रीन तक हम पहुंचा देंगे। लेकिन इस वक्त ये विजुअल्स आप देख सकते हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर, जो आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जहां पर दूर दूर तक आवाज़ सुनी गई। धमाके के बाद एक धुआं सा महसूस होता हुआ, दिखता हुआ नजर आ रहा है, और काफ़ी मसरूफ इलाका है। आसपास निजी स्कूल्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल रहमान, थोड़ा सा हमें ये बताइएगा कि इलाका बड़ा मसरूफ नज़र आ रहा है, आप बता रहे हैं निजी स्कूल्स यहाँ पर हैं, करीब में अस्पताल है। उमूमी तौर पर कितने सिक्योरिटी चेक पोस्ट हैं जो कि यहाँ पर मौजूद होती हैं अब्दुल रहमान? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी चेक पोस्टों की बात की है तो जो कैंट का एरिया है यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर जो है दूर है, और वहाँ पर तो आर्मी की चेक पोस्ट है। लेकिन जो वर्सक रोड से साइड से आते हैं वहाँ पर भी मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अवकात में चेक पोस्ट लगाए जाते हैं। लेकिन रूटीन के अलावा जो आर्मी की चेक पोस्ट है जहाँ से छावनी में दाखिल हुआ जाता है, उसके अलावा यहाँ पर कोई चेक पोस्ट है। और ये बड़ा रौनक इलाका है, ना सिर्फ ये आगे वर्सक डैम है बल्कि इसके साथ ही आगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की रिहाइशगाह भी है। इसी तरह जो निगरान वज़ीर आला है हमारे आज़म खान, उनकी रिहाइशगाह भी इससे थोड़े फासले पे है। तो दहशतगर्दों ने एक वार किया है एक बार फिर ऐसे इलाके पे जिसको हम हसास इलाका कहते हैं, जहाँ पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अपना जाती घर भी है, जहाँ पर निगरान वज़ीर आज़म खान का जो है वो उससे थोड़ी दूर उनका जाती घर भी है। इसी तरह बड़ी तादाद में यहाँ पर निजी स्कूल है, और ये सड़क पुररौनक रहती है। यहाँ पर फाटा सेक्रेटरीट जो एक्स फाटा सेक्रेटरीट है उनके दफातर है, इसी तरह दीगर मुख्तलिफ इदारों के भी यहाँ पर दफातर है, CNW के दफातर हैं। तो वो इसी रोड पे है। इस जो ब्लास्ट हुआ है इससे तकरीबन थोड़ी 4-5 मिनट के फासले पर ये जितने मैंने मकामात बताए हैं तो ये मौजूद हैं। सही, अब्दुल रहमान साथ ही रहिएगा। सजाद हैदर ने भी हमें ज्वाइन किया, उनके पास क्या डिटेल्स हैं उनसे ज़रा जान लेते हैं। सजाद हैदर, आगाह करें, कुछ धमाके की नौयत का तयन किया जा सकता है? ज़ख्मियों के हवाले से हमें आगाह करें, उन्हें किस नौयत के ज़ख्म आए हैं, करीबी अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है? मज़ीद क्या कुछ डिटेल्स सामने आ पा रही हैं धमाके से मुतालिक? बिल्कुल, रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक जो है वाकई में जो है 4 अफराद जो है जख्मी होने की इत्तला है, जिनको जो है जी। तिब्बी इमदाद के लिए एम्बुलेंस के जरिए जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। और धमाके के बारे में पुलिस का यही कहना है कि तहकीकात जो है शुरू कर दी गई है। ये बताना कबल इस वक्त होगा कि धमाका किस नौयत का था, क्या ये खुदकश था या कोई IED ब्लास्ट था। ये मुकम्मल तहकीकात के बाद ये चीज जो है सामने आएगी। जबकि इस टाइम जो है जय वकुआ को तमाम कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस समेत जो है पुलिस और CTD की टीमें जय वकुआ पर पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी तहकीकात शुरू कर दी गई है। FC की गाड़ी थी जो यहाँ से गुजर रही तो उसके करीब जो है ये धमाका हुआ है। वर्सक रोड का इलाका है जहाँ पे आगे धमाका हुआ है। वर्सक रोड का एक रास्ता जो है वो शबकदर की तरफ, चरसदे की तरफ जाता है, जबकि दूसरा इसका रिंग रोड का रास्ता जो रिंग रोड पे जाता है और एक सिटी की तरफ जो
आता है, कैंट की तरफ आता है। ये 3 रास्ते हैं। यहाँ पर आर्मी की चेक पोस्ट भी मौजूद है कैंट के अंदर एंट्री के वक्त, लेकिन उससे पहले जो है ये धमाका हुआ है जहाँ पर एफसी की गाड़ी मौजूद थी और यहाँ पर ये धमाका हुआ। पुलिस का यही कहना है कि वाकई की तहकीकात जो शुरू कर दी गई है और इसको ये देखना होगा कि ये धमाका जो है किस नौइयत का था। ठीक है। अच्छा सजाद, जैसे कि आप हमें आगाह कर रहे हैं थोड़ा सा रेडियस के हवाले से कि एक जो रास्ता है वो शब कदर की जानिब जाता है, दूसरा रिंग रोड की जानिब, तो ये जो बीच का इलाका है ये वाला वर्सेक का, ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तर्जुमान रेस्क्यू बिलाल फैजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पहले तो बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कितने अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, थोड़ा सा अगर आप ये बता सकें कि उन्हें किस तरह के, किस नौयत के जख्म आए और अगर जख्मियों की तादाद भी अगर आप कंफर्म कर सकें। जी बिलाल साहब। जी बिल्कुल। इब्तिदाई तौर पर अब से कुछ देर कबल जो है वो एक पिकअप पे अटैक हुआ है जिसमें 3 से 5 अफराद जख्मी होने की इत्तलात है और इसमें मजीद जो जख्मी है उनके बढ़ने का भी खदशा है। इनको इब्तिदाई तौर पर इसी ब्लास्ट वाली जगह के करीब ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, प्राइम अस्पताल, जहाँ पे इन जख्मियों को मुंतकिल किया गया था। अब उनमें जो शदीद जख्मी है उनको मजीद इलाज मुआवजे के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पेशावर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरह रेस्क्यू 1122 की 5 एम्बुलेंसेज जो है वो मौके पे मौजूद हैं। सारा एरिया जो है वो भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और बीडीयू वगैरह भी तलब कर दी गई है। अगर देखा जाए तो रेस्क्यू 1122 को जैसी इत्तला मिली तो हमारा जो वहाँ पे करीबी स्टेशन था वहाँ से 2 एम्बुलेंसेज मौके पे पहुंची। उसके साथ साथ 3 मजीद एम्बुलेंसेज जो है वो करीबी स्टेशन से तलब की गई हैं। अभी तक कुछ भी कहना कबल वक्त है कि धमाके की नौइयत क्या है, लेकिन जो हमारे पास इस वक्त जख्मी है वो तकरीबन 3 से 5 जख्मी जो है वो कंफर्म है और इसमें मजीद इजाफे का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। सही, 3 से 5 जख्मी जो कि कंफर्म है, मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इन जख्मियों को निजी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिलाल फैजी साहब तर्जुमान रेस्क्यू हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर इस हवाले से जो डिटेल्स हैं हम तक पहुँचा रहे थे हमारे नुमाइंदगान सज्जाद और अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद थे। अम दुश्मनों की जानब से एक बार फिर सबुताश करने की मज़मूम जो है वो मकासद सामने आए हैं। एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स इस वक्त नाज़रीन हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो इलाका है, आप देख सकते हैं, जहां पर धमाका हुआ और जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।